and met the daily food requirements of more than 250 families with Rashtriya Seva Bharati for 15 days. Cooked meal was provided to more than 75,000 people during the lockdown period, and roti were distributed to nearly 500 daily wage workers for a period of 15 days. Hospital uh, and all the healthcare facilities were provided for quarantine, isolation, and treatment of patients who were infected with COVID-19 at our own ITS Surya Hospital. More than 8,000 people received food packets during the initial lockdown period who were stranded at the bus stops. To beat the heat, fruity, cold drink, ruah afza, etc., was distributed to more than 10,000 people. We were capable in distributing 200 bottles of hand sanitizers to hospitals and 400 bottles of hand sanitizer to the police personnel via SP City Ghaziabad. So, a vibrant Vice Chairman, sir, has always ensured that our morale remains elevated. And at the same time, we keep ourselves updated on the issues that form the basis for us to have a healthier, happier, and more productive future through a series of webinars since the commencement of lockdown. Vice Chairman, sir, has himself been an active speaker on various platforms. He was interviewed recently at the very prestigious Author Sherry Show. Today, pandemic of COVID-19 is widespreading, and there are innumerable queries pertaining to the same in everyone's mind. We today are very thankful to our respected Vice Chairman, sir, the man behind this program, for inception and planning of this much awaited webinar. It was his view to make us listen to all the facts from the master himself, Dr. K.K. Agarwal. I would again like to thank our Honorable Vice Chairman, Mr. Arpit Chadda, sir, for organizing events like these in these testing times, and would request him to say a few words. Thank you. Thanks a lot, Dr. Shivani. I will just take a minute. I know everyone's here to hear, sir. I would just like to wish everyone a very good evening. There are more than 500 participants who joined in. Initially, I would heartfelt thanks to you, Dr. K.K. Agarwal, sir. We've been hearing your videos, your audios, but we were always of the opinion that it will be great if everyone can hear it from you directly in a session. And as Dr. Shivani also rightly said, that there's a lot of messages, a lot of information which has been flowing out. So there's a lot of questions in everyone's mind, how to stay protected, how to come over this pandemic, because sitting at home forever will definitely not be a solution to it. I would just like to thank you once again, sir, and just a small brief about things we've been doing. We've had more than 5,000 online classes. We've had 50 CEO talks. We've had senior people like you, Dr. Mahesh Verma, Dr. Anil Kohli, who've given their valuable time and enriched each one of us by their knowledge and everything. Once again, I would like to thank you, sir, and over to you, Dr. Shivani, so that session could start on time. Thanks a lot. Thank you, sir. I may be falling short of words in introducing today's speaker, Dr. K.K. Agarwal. He is a recipient of 4 national awards, including the very prestigious Padam Shri, Vishwa Hindi Samman, Dr. B.C. Roy National Award and National Science Communication Award, and 1 State Sahitya Shri Award in 2007. He has also been 3 times Limca Book of World of Record holder in CPR 10. He is a gold medalist, TEDx speaker, and recipient of FICCI Healthcare Personality of the Year Award in 2016. Sir is currently the President, Confederation of Medical Associations of Asia and Oceania, and President Heart Care Foundation of India. He is a Group Editor-in-Chief, IJCP. He has also been the past National President and past Honorary Secretary General, Indian Medical Association, and past President, Delhi Medical Association and IMA New Delhi branch. He was also the former Ethics Committee member, Medical Council of India, and former Chairman, Ethics Committee, Delhi Medical Council. As someone rightly said, you can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. With this, I would now request you, sir, to take over the session, at the end of which we shall be taking up a few questions. Over to you, sir. So you're not audible. Yes.
Good evening, sir. I said Namaskar, Arpit Chadda ji, Shivani Mathur ji, Dr. Shetty ji, and जो लोग मेरे से बड़े हैं उन्हें मेरा चरण स्पर्श, जो मेरे से छोटे हैं उनको मेरा आशीर्वाद, और जो मेरे बराबर के हैं उनको नमस्कार. This COVID era has taught us many new things. We can't imagine 500 people together without a preparation of 3 to 6 months. If you want to gather a conference of 300 to 500 people, you require large number of efforts. And now we are there in 5 minutes. You send a message and everybody is there when it comes to new information about COVID. Of late, I created a group of COVID patients. And I do a live webinar at 8 o'clock in the morning and 2:30 to 3:30 in the afternoon. And I have interviewed thousands of corona patients. So whatever I am speaking today, I'm speaking from my experience based on talking to them. And this has totally changed my perception of corona. My first perception of corona was lockdown means that corona is stronger than us. हम सब लोगों को पिंजरे में डाल के zoo बना दिया इस कोरोना ने. All of us became in a pinjara and he was moving outside like he is stronger than us. Then I started reading Hinduism, Jainism, Islam, Sikhism. Everywhere I started reading and I found that nobody can be stronger than human being. If that's so, why are we fearing? Why this fear? And then suddenly we realized that there is a country called China जिन्होंने लॉकडाउन कर दिया, बाकी सब लोग blindly उनको फॉलो कर रहे हैं. Nobody followed why China did a lockdown. Was it really necessary? ये पता लगा कि हम बीमारी को 2 महीने पोस्टपोन कर रहे हैं, बट 2 महीने बाद वो आएगी कि नहीं आएगी. कैन वी कंपेयर चाइना? चाइना में अभी 6 केस दोबारा आए, उन्होंने 65 लाख टेस्ट 2 हफ्ते में किए. 65 lakh टेस्ट in 2 weeks. Can we imagine India doing it? If we can't, then why are we following the lockdown of China? चाइना में एक डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, उनका लॉकडाउन मीन्स समथिंग डिफरेंट. उन्होंने लॉकडाउन किया, अपनी बीमारी एक एरिया में लोकलाइज हटा के पूरी दुनिया में लॉकडाउन करा दिया, नॉट रियलाइजिंग कि पूरे इंडिया में, पूरे चाइना में लॉकडाउन पॉसिबल नहीं था. देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग ये जो रोज आ रहा है मर गए, रियली में लोग मर रहे हैं क्या? आई स्टार्टेड टॉकिंग टू डायबिटिक्स. सारे डायबिटिक्स ने बोला कि बस पापा जी को बचाओ, क्या हो गया, पापा जी को डायबिटीज है. The daughter is concerned about the parents, everybody is concerned about the elderly कि उनको हो गया मर गए. मतलब now it has become like कि if you are a high risk and if you develop corona you die. Then I started realizing कि इंडिया में डायबिटिक्स कितने हैं. तो मैंने देखा इंडिया में जो डायबिटिक्स हैं वो 8 करोड़ हैं. फिर मैंने देखा कि हर साल डायबिटिक्स कितने मरते हैं, तो उसमें लिख के आया 10 लाख मरते हैं. हर साल 8 करोड़ में से 10 लाख डायबिटिक्स मरते हैं. मैंने कहा वेरी गुड. कोरोना से कितने डायबिटिक मरे? 4000 भी नहीं मरे अभी तक. और हम उन 4000 के पूछे बाकी सब लोगों को डरा रहे हैं. 8 करोड़ में से 4000 छोड़ के बाकी सब डायबिटीज की हमने नींद उड़ा दी. क्यों? फिर हमने बोला चलो निकालते हैं पूरे इंडिया में कितने लोग मर रहे हैं. तो लोग बोल रहे हैं 2.8%. डर लगता है ना. इस वक्त में यहाँ पे 700 लोग बैठे हुए हैं. अगर मैं 2.8 का मतलब लूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उसमें से 30 लोग मर जाएंगे. अगर मैं बोलूं जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं 1 महीने में 30 लोग मर जाओगे, रात को नींद नहीं आएगी आपको. रात में आपको नींद नहीं आएगी, किसी हालत में नहीं आएगी. लेकिन वो 2.8% सिम्टोमेटिक केसेस के हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं. 100 हार्ट अटैक के पेशेंट एडमिट होते हैं तो 5 मरते हैं.
उसमें तो कभी हमने आज तक नहीं सोचा कि वो 5 क्यों मर रहे हैं या तो 2.5 मर रहे हैं। इस बीमारी में से 100 एडमिटेड पेशेंट में से 2.5 मर रहे हैं एंड वी हैव सो मच पैनिक। और जहां हार्ट अटैक में 100 में से 5 मरते हैं, हम कुछ नहीं बोलते, वो हार्ट अटैक हुआ जी, मर गया। पैरालिसिस में इतने मरते हैं, लिवर फेलियर से इतने मरते हैं, किडनी फेलियर से इतने मरते हैं, उनके बारे में तो कभी हमने बात नहीं करी। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ढूंढना चालू किया कि कितने लोगों को एक सिम्टोमेटिक केस में कितने एसिम्टोमेटिक केस होते हैं। तो वी स्टार्टेड रियलाइजिंग, तो हमने स्टडी निकाली वुहान की कि 6 केसेस पॉजिटिव थे, 65 लाख लोगों का टेस्ट किया तो 200 पॉजिटिव पाए गए, यानी कि एक पॉजिटिव में 30 एसिम्टोमेटिक है। अगर एक पॉजिटिव में 30 एसिम्टोमेटिक हैं तो फिर आप नंबर और केसेस को 30 से मल्टीप्लाई कर दो और डेथ को 30 से डिवाइड कर दो, तो हमारा डेथ रेट आता है 2.8 पर 3000 केसेस के हिसाब से हमारा आता है लेस देन 0.2%। नॉर्मल सर्जिकल रिस्क कितना देते हो आप लोग डेंटल में, कोई मेजर सर्जरी करनी हो पेशेंट को? यू से रिस्क इज, मिनिमम रिस्क इज 1%, you say low risk 1%, high risk more than 5%, moderate risk 1 to 5%। आप कोई भी सर्जरी कर लो मेजर, जब आप सर्जरी का कंसेंट लेते हो तो आप लेते हो कि द रिस्क इज लो रिस्क, यू से दिस इज अ लो रिस्क सर्जरी। वो पूछेगा कितना रिस्क है, लेस देन 1%, तो यहां तो 0.2% मोर्टेलिटी है और आपने इसको हवा बना दिया। तो फिर सब जगह पे इशू निकल के आया कि जी एसिम्टोमेटिक केसेस ज्यादा हैं। सो आई वाज वर्किंग फॉर द लास्ट 2 वीक्स कि एसिम्टोमेटिक की डेफिनेशन क्या है। इफ यू वॉच माय वीडियोस वेयर आई एम टॉकिंग टू पेशेंट्स, यू विल बी अमेज्ड। एसिम्टोमेटिक केसेस आर हार्डली एनी, एसिम्टोमेटिक केसेस आर हार्डली एनी। मैं 1 सेकेंड में लेता हूं, मैं जूम पे हूं, 1 घंटे में आ जाए। So asymptomatic cases are hardly any। अब मैंने लोगों से बात करना चालू किया, यहां से किसी के घर में कोरोना हुआ है, हाथ खड़ा कर सकता है? किसी के घर में कोरोना के केसेस हुए हैं मल्टीपल? एनीबडी हु कैन अनम्यूट एंड स्पीक? एनीवे, कोई डिस्क्लोज करना नहीं चाहता। सो हमारे यहाँ पे क्या है, फैमिली विल से मेरे घर में 6 लोगों को है, 7 लोगों को है, 8 लोगों को है। तो एक पेशेंट मेरे पास आया, बोले डॉक्टर साहब मेरे को खांसी हो रही है और हल्का सा बुखार है। मैंने कहा और किसी को तकलीफ है? बोले और किसी को तकलीफ नहीं है। मैंने खुरेदना चालू किया, मैं उनसे पूछता हूँ तुम्हारे घर में किसी को बुखार है? बोले हाँ, वो मेरी बीवी को हल्का सा हरारत होती है, बुखार नापते हैं, बुखार नहीं आ रहा। मैंने पूछा उनके गले में दर्द? बोले वो तो सबको होती है गले में दर्द, तो थ्रोट के अंदर इरिटेशन तो सबको होता है। फिर मैंने बोला उनको थ्रोट इरिटेशन के अलावा आपको बॉडी में बॉडी एक होता है? बोले वो काम ज्यादा करती है इसलिए बॉडी एक हो जाता है। फिर हमने बोला थकान? बोले हाँ थकान तो सबको होती है, आजकल ज्यादा हो रही है क्योंकि हम लोग घर में खाली बैठे हैं इसलिए थकान हो रही है। बोलेंगे स्मेल और टेस्ट? बोले हाँ वो मेरी बिटिया का स्मेल और टेस्ट गया हुआ, लेकिन उसका कोरोना से क्या ताल्लुक है? वो नहीं है जी, सब एसिम्टोमेटिक है उसके साथ में। बोले कान का? बोले हाँ वो मेरी चाची के कान में दर्द हो रहा है। हमने कहा किसी को घर में नाक बह रही है? बोले हाँ वो मेरे चाचा के नाक बह रही है, हम सब लोग एक ही फैमिली में रहते हैं उसके साथ में। तो मैंने पूछा किसी को डायरिया बोला है? बोले हाँ वो नौकर को डायरिया हो रहा है, लेकिन कोरोना नहीं है उसके साथ में। हेडेक? बोले हाँ वो मेरे पड़ोस में जो घर में हमारे आते हैं उनको हेडेक हो रहा है, 2-3 दिन से हेडेक हो रहा है, हम बीपी चेक करा रहे हैं और हेडेक की दवाई ले रहे हैं उसके साथ में। बोले पैल्पिटेशन? बोले वो हाँ वो ब्लड प्रेशर की दवाई है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती है तो पैल्पिटेशन हो जाता है। अच्छा पैरों में घुटनों के नीचे दर्द होता है? बोले वो तो रात को दवा लेते हैं ठीक हो जाता है। बोले कभी कभी ठंड लगती है? बोले हाँ ठंड लगती है, बुखार नहीं होता। ये सारे कोरोना के लक्षण हैं और सरकार कहती है सिर्फ खांसी ढूंढो, बुखार ढूंढो, इसलिए इनको हम एसिम्टोमेटिक बोल रहे हैं। इन 1000 लोगों से जिनसे मैं बात कर रहा हूं, ये कांस्टेंट फाइंडिंग है फैमिली में, 7 में से किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। हम सब इन लोगों को मिस कर रहे हैं। आज की डेट में दिल्ली में आई विल नॉट बी सरप्राइज,
अगर 20% पॉपुलेशन को कोरोना हो चुका हो। अब बताइए कोई खुल के सामने आएगा जिनके घरों में सिम्टम्स हो रहे हैं और बोल रहे हो मैं सिम्टोमेटिक हूं? आप कोरोना टेस्ट करा लीजिए, सबका पॉजिटिव आएगा। सो कोरोना इज बिहेविंग डिफरेंटली। व्हाई? नाउ कम्स द मेडिसिन। व्हाई इट इज बिहेविंग डिफरेंटली? वी डोंट नो इट इज अ वायरस और अ बैक्टीरिया। We don't know it is a HIV virus or a non-HIV virus. Why? If it is a virus, it should cause a simple fever, which should disappear in 7 to 14 days. It should not involve the throat. It should cause it should involve the larynx. It should cause laryngitis. It should cause lot of nasal discharge, and it should cause lot of cough. That's a typical respiratory virus. That's a typical respiratory virus. तो कुछ लोगों में ये वायरस की तरह बिहेव कर रहा है, बाकी लोगों में it is behaving like a bacteria. Whenever you have sore throat, tonsillitis, that's bacterial. Whenever there is a sore throat, we say typical streptococcal pharyngitis. इसमें आ रहा है। अगर वो वायरल है तो लिम्फोसाइट बढ़ने चाहिए, पॉलीमॉर्फ बढ़ने नहीं चाहिए। यहां पॉलीमॉर्फ बढ़ रहे हैं। और अगर ये बैक्टीरियल होता तो टीएलसी बढ़ता। तो ये टीएलसी बढ़ा रहा है, पॉलीमॉर्फ बढ़ा रहा है, लेकिन टीएलसी नहीं बढ़ा रहा। तो इट इज नाइदर वायरल नॉट बैक्टीरियल। अब वायरल में तो ईएसआर नहीं बढ़ेगा, इसमें बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये इसके अंदर में कुछ प्रॉपर्टीज बैक्टीरिया की हैं, इसलिए लोग बोल रहे हैं डॉक्सीसाइक्लिन दो, एजिथ्रोमाइसिन दो, एंटीबायोटिक का रोल है, क्योंकि इट इज बिहेविंग लाइक बैक्टीरिया। तीसरी चीज ये क्या कर रहा है? इट इज बिहेविंग लाइक एचआईवी। एचआईवी में क्या होता है? लिम्फोपीनिया एंड लो CD4 काउंट। अब सब लोगों ने सुना होगा कि CD4 काउंट की बेसिस में एचआईवी का ट्रीटमेंट होता है। ये CD4 काउंट कम कर रहा है। जिसमें ये CD4 काउंट कम कर रहा है वहां पे एचआईवी की दवाइयां दो, बाकियों में क्यों दे रहे हो? सो ये इसका थर्ड मैनिफेस्टेशन है। अब इसका फोर्थ मैनिफेस्टेशन है कि ये इम्यूनो इन्फ्लेमेशन कर रहा है। जैसे हमारे एक टेंडेंसी है इम्यूनो इन्फ्लेमेशन में, हाई प्लेटलेट, हाई ESR, हाई CRP, हाई फेरेटिन मींस इम्यूनो इन्फ्लेमेशन। SLE में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये फैक्टर कॉमन है। इसको बोलते हैं इम्यूनो इन्फ्लेमेशन। इम्यूनो इन्फ्लेमेशन मींस हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। अब ये इम्यूनो इन्फ्लेमेशन भी कर रहा है, और जिन लोगों को इम्यूनो इन्फ्लेमेशन कर रहा है उनको ये ESR बढ़ा देगा, CRP बढ़ा देगा, उनको हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देनी है। अब हम बाकियों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काम नहीं कर रही। दे या ना दे फर्क नहीं पड़ता। अरे इम्यूनो इन्फ्लेमेशन नहीं है तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या काम करेगी? कुछ लोगों में ये थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन कर रहा है। अब वापस जा रहा हूं मैं, इम्यूनो इन्फ्लेमेशन में प्लेटलेट काउंट नहीं बढ़ा रहा, तो इसका मतलब है कि इम्यूनो इन्फ्लेमेशन भी कर रहा है, लेकिन एक चीज उसकी नहीं कर रहा, हर एक की। अदरवाइज अगर प्लेटलेट भी बढ़ता तो हम कह देते दिस इज इम्यूनो इन्फ्लेमेटरी डिसीज। कुछ लोगों में ये थ्रोम्बो इन्फ्लेमेशन कर रहा है, डी डायमर भी बढ़ा रहा है, फिब्रिनोजन भी बढ़ा रहा है। नॉर्मली जब डी डायमर बढ़ता है तो फिब्रिनोजन लो होना चाहिए, ये दोनों बढ़ा रहा है, फिर अनयूजुअल हो गया। ये हर चीज अनयूजुअल कर रहा है। और जिन लोगों को डी डायमर बढ़ा रहा है और फिब्रिनोजन बढ़ा रहा है, वहां पे अगर हमने हिपैरिन नहीं दिया तो वो लड़क लेंगे। कुछ लोगों में ये हैप्पी हाइपोक्सिया कर रहा है, एकदम से ऑक्सीजन लेवल को 50-60 पे ले आएगा, और अगर हमने टाइमली ऑक्सीजन नहीं दी 6 घंटे तक, वो आदमी मर जाएगा। सो इट इज कॉजिंग साइलेंट हाइपोक्सिया। किसी और कंडीशन में साइलेंट हाइपोक्सिया नहीं होती। we have never heard of silent hypoxia in the past. Silent hypoxia means कि आदमी चलता, इसको बोलते हैं वॉकिंग डेड फिनोमिना। आदमी चल के आ रहा है, ऑक्सीजन 50 है, उसे पता ही नहीं, और आते ही either he is brought dead or he is walking dead, आया और मर गया। क्योंकि अगर आपने हाइपोक्सिया 50 के ऑक्सीजन पे 6 घंटे रख लिया आदमी को, वो तो मर गया। वहां पे अर्ली ऑक्सीजन चाहिए।
कुछ लोगों के अंदर में इट इज बिहेविंग लाइक ए ARDS, जो टिपिकल निमोनिया में होता है, साइटोकाइन क्राइसिस, जिसे हम बोलते हैं साइटोकाइन क्राइसिस। कुछ लोगों के अंदर में वो बिहेव कर रहा है। अगर इसके इतने सारे प्रेजेंटेशंस हैं तो ये सारे सिम्टम्स तो होंगे ना किसी में। भाई हर आदमी को तो सारे सिम्टम्स नहीं आ रहे, हर आदमी को सारी पैथोजेनेसिस नहीं आ रही, तो उसके हिसाब से सारे सिम्टम्स भी सबको नहीं आएंगे। अगर आपको सिर्फ फीवर और कफ का वेट कर रहे हो तो वो तो वायरल और बैक्टीरियल हो गया। अब किसी को इन्फ्लेमेटरी होगा, वो तो गले में नहीं होगा, तो वो GI में भी हो सकता है। अगर वायरस सांस की नली में जाने के बदले आ गया तो ना, सर आपकी आवाज, हेलो हेलो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। मैम मैं चेक करवाती हूँ। हाँ प्लीज। anyway, अब आवाज आ रही है? हाँ जी सर, अब आ रही। तो मैं इसको हटा देता हूँ। So I'm now not using my mic, I'm using directly the microphone. मैं कहाँ तक था, कहाँ तक बोला मैंने? सर आप बता रहे थे कि इट्स बिहेविंग वेरी डिफरेंटली और ARDS की तरह रिप्रेजेंटेशन है कुछ तो पेशेंट्स। ये ARDS की तरह भी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। So this virus, if it is having so many manifestations, its symptoms will also be different. And we are only looking for fever, cough, breathlessness. वो तो 10% में भी नहीं होगा, तो 90% केसेस को हम बोल रहे हैं एसिम्प्टोमेटिक है। वो एसिम्प्टोमेटिक नहीं है, they are not asymptomatic, they are symptomatic, but we are missing in the diagnosis. कल जाके सरकार ने कुछ चीजों को इसमें ऐड किया है कि ये भी डायग्नोसिस में आए हैं। इसका मतलब कल से पहले जितने भी केसेस एसिम्प्टोमेटिक थे वो सारे मिस हो गए, बीमारी फैल गई, फैलेगी बीमारी। जब आप ढूंढ रहे हो दिल्ली में चोर गाजियाबाद बैठा है, या गाजियाबाद में ढूंढ रहे हो चोर दिल्ली में बैठा है, तो कैसे ढूंढोगे आप? सारे केसेस हमारे सिम्टोमेटिक हैं, एसिम्टोमेटिक नहीं है। उनको माइनर सिम्टम्स हैं, एटिपिकल सिम्टम्स हैं, सबको आएंगे। दिस इज माय सेकंड थिंग। थर्ड थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग which I want to talk about is now I specifically come to dental practice. I specifically with this in mind. So now you take it for granted everybody who is coming to your practice is COVID positive. मेरे को ये इतना सारा बेस भूमि बनाने का इसलिए था कि आप सबसे थोड़ी पूछोगे तुम्हारे को कि डायरिया है कि नहीं है, घर में किसी को है कि नहीं है। उसको समझाते ही आपको आधा घंटा लग जाएगा। तो टेक इट फॉर ग्रांटेड एवरीबॉडी इज कोविड पॉजिटिव। अब हियर कम्स इज चैरिटी बिगिंस एट होम, कि मेरे को अपने आप को बचाना है, फिर मेरे स्टाफ को बचाना है, फिर मेरे पेशेंट को बचाना है। क्योंकि अगर मेरे को हो गया तो मैं तो 200 लोगों को कर दूंगा दिन भर में। तो सबसे पहले मेरे को अपने को बचाना है। एंड हियर कम्स these are called as Dr. K.K. Agarwal's tricks. ट्रिक नंबर 1, पेशेंट को 10 मिनट से ज्यादा मत देखो। अगर पेशेंट को 10 मिनट से कम देखते हो तो आपको कोरोना नहीं होगा। ऑब्वियसली आपने मास्क पहन रखा है, आई एम प्रिज्यूमिंग। अगर आप 30 मिनट, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर 30 मिनट से ज्यादा का मत करो। ट्रिक नंबर 2, व्हेन इट कम्स टू कंसल्टेशन, लेस देन 10 मिनट्स।
व्हेन इट कम्स टू सर्जिकल प्रोसीजर, कोई भी डेंटल एक्सट्रैक्शन करना है आपने, मान लीजिए 1 घंटा लगना है, बोले आधा आज करूंगी आधा कल करूंगी, नहीं तो 2 डेंटिस्ट मिलके करो, आधा घंटा वो करे आधा घंटा वो करे। आई हैव स्पोकन टू मैनी, मैंने गायनेकोलॉजिस्ट, वो कहते हैं 2 लोग मिलके सिजेरियन करते हैं, आधा एक करता है आधा एक करता है, पहली वाली आती है खोल के बच्चा निकाल देती है, फिर दूसरी वाली आ जाती है। बिकॉज इफ योर कॉन्टेक्ट टाइम इज मोर देन 30 minutes, you are a high risk, and if your contact time is less than 10 minutes, you are a low risk. इसलिए हम पूछते हैं लोगों से, सपोज यू से कि मेरे क्लिनिक में कल एक पेशेंट आया था, मैंने उसका डेंटल प्रोसीजर किया, शाम को फोन आया कि वो तो कोविड पॉजिटिव है। ओ माय गॉड, पैनिक, बंद करो, घर के माँ बाप बोलेंगे कल से तुम डेंटल क्लिनिक में नहीं जाओगे, बंद करो, कॉलेज बंद करो, सबको बंद करो, सबको इन्फॉर्म करो, ये पैनिक चालू हो जाएगा। अगर लास्ट 48 आवर्स में आपने 100 भी पेशेंट देखे हो, और अगर आपने मास्क प्रॉपर पहन रखा था और किसी को भी आपने 10 मिनट से ज्यादा नहीं देखा, तो सारे के सारे भी पॉजिटिव हो, तो आई डोंट केयर, आई डोंट केयर वो पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, मैंने अपनी पूरी केयर ली है, मेरा क्लिनिक बंद नहीं होगा। और अगर आपने सर्जरी करी है और आधा घंटे में खत्म कर दी है और शाम को फोन आता है वो कोविड पॉजिटिव था, सो व्हाट, सो व्हाट, मेरे लिए तो सारे पेशेंट पॉजिटिव है, बाकी सारों का पता नहीं था, इसका पता लग गया, मैंने तो प्रिकॉशन ली है। नंबर 3, हर डेंटिस्ट के अंदर में क्योंकि एरोसोल प्रोसीजर्स है, इसलिए आपको एयर प्यूरिफायर लगाना जरूरी है। आप उसमें एयर प्यूरिफायर लगा लीजिए जिसके अंदर 10 एक्सचेंजेस पर आवर, अगर ना मिले तो 6 एक्सचेंजेस पर आवर से वो हवा को फिल्टर कर रहा है। आपका रूम में एरोसोल्स आपको तंग नहीं करेंगे। सो इफ यू वांट टू ओपन ए डेंटल क्लिनिक, पुट ए एयर प्यूरिफायर, यू से आई एम ओके, माय रिस्क इज मिनिमाइज्ड, 10 मिनट 30 मिनट, लास्ट 48 आवर्स आई एम फाइन। और अगर कोई आदमी आपको 3 दिन पहले आया था जो पॉजिटिव आया था, फॉरगेट अबाउट इट, डेफिनेशन इज 48 आवर 30 मिनट्स। नेक्स्ट, आपके क्लिनिक पे एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होना चाहिए। इफ यू आर रनिंग ए क्लिनिक, इफ यू आर ए हॉस्पिटल और ए वार्ड, हैव वन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कि जैसे ही पेशेंट आया आपने SpO2 चेक किया, मान लीजिए उसको कोविड है, डायरिया चल रहा है, और उसने आपको बताया नहीं, दांत कराने आ गया, वो तो कहता है मेरे को तो खांसी है नहीं, कराने आ गया, पता लगा कोविड है, और जहां आपने देखा अरे उसका ऑक्सीजन तो 50 है, और पेशेंट कह रहा है मुझे कुछ नहीं है, और अगर आपने ऑक्सीजन नहीं लगाई तो वो 4 घंटे में मर जाएगा। तो आपके पास में ऑक्सीजन का इंतजाम होना चाहिए एक, ठीक है। अगर आपके पास में ऑक्सीजन का इंतजाम है और आपके पास में एक ऑक्सीजन मीटर है और एक प्यूरिफायर है, यू आर ए कोविड डेंटल क्लिनिक, कोविड फ्रेंडली डेंटल क्लिनिक। आपके यहां से कोई मरेगा नहीं। बाकी किट्स के बारे में मैं कोई बात नहीं कर रहा, PPE के बारे में आप लोग बहुत सुन चुके हैं, लेकिन डेंटल क्लिनिक में आप लोग N95 मास्क का इस्तेमाल करेंगे, एंड इफ पॉसिबल डबल मास्किंग। आप एक N95 के मास्क के ऊपर में सर्जिकल मास्क लगाइए, हर पेशेंट के बाद में सर्जिकल मास्क फेंकते जाइए, नगल लगाते जाइए, अंडर N95 मास्क रहेगा, आप डबल प्रिकॉशन लेंगे। लेकिन जब आप एक मास्क पहन रहे हैं, जब एक मास्क पहन रहे हैं और जब बॉस आए तो आप क्या करते हो, यस बॉस, ये नहीं करना, ठीक। नॉर्मल टेंडेंसी क्या होती है, आपने लगा रखा है, जब बॉस पूछते हैं हेलो कैसे हो, यस बॉस, जैसे ही नीचे उतारा आपने, या तो आपने बॉस को दे दिया या बॉस ने आपको दे दिया। नेक्स्ट चीज, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो फेस टू फेस बात नहीं करनी। अब आप लोग मान लीजिए आप खाना खाने जा रहे हो, ये टेबल है तो ऐसे बैठो,
या ऐसे बैठो, फेस टू फेस मत बैठो। जो भी मेरे से उम्र से 1 सेकंड बड़ा है वो मेरे से बड़ा है, उनको ऐसे करके बात करो, यस सर, यस मैडम, ताकि मेरा फेस उनके फेस से टच ना हो। अगर आप फेस टू फेस नहीं बैठते तो बीमारी नहीं होगी। इसका वर्णन आता है रामायण में, जब सीता रावण से बात करी तो ऐसे करके बात करी कि मैं पराये आदमी का मुंह नहीं देखूंगी। सो अगर आप फेस टू फेस मीटिंग हटा देते हो, अब मान लीजिए आप प्रिंसिपल हो बैठे हो, या टीचर हो बैठे हो, या स्टूडेंट हो, तो प्रिंसिपल जी क्या बोलेंगे, यहां बैठे हैं, लोगों को यहां नहीं बिठाएंगे, यहां बिठाएंगे, यहां बिठाएंगे, ठीक है ना, यहां नहीं बिठाएंगे, यहां नहीं बिठाएंगे, सामने बिठाएंगे। और अगर एसी चल रहा है तो एसी की हवा छत पे, मेरे सर पे नहीं। अब देखिए मेरे पीछे एसी है, हवा आ रही है मेरे पास में, तो मेरे वायरस को लेके आगे जाएगी, तो जो आगे बैठा है उसको हो जाएगी। और अगर मेरे एसी मेरे आगे है और मेरे सामने कोई आदमी बैठा है तो एसी की हवा उसके वायरस को लेके मेरे पास आएगी, मेरे को हो जाएगा। तो फेस टू फेस मीटिंग नहीं करनी, आपकी आधी बीमारी खत्म। और वैसे भी आप लोग तो डेंटल काम पीछे पेशेंट के पीछे जाके करते हो, तो वहां पे तो कोई फेस टू फेस है ही नहीं, वो तो ईएनटी वाले होते हैं जो फेस टू फेस करते हैं। आप लोग जितने भी आपने चेकअप करना है डेंटल टेबल पे लेटा और पीछे से चेक करो, फेस टू फेस जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना करो। और आप डबल मास्किंग करो, और अगर उसके मुंह में देख रहे हो तो शील्ड लगा लो साथ में। जैसे ही शील्ड लगाओगे उस आदमी को आप देख सकते हो आराम से उसके साथ में। सो व्हेन इट कम्स टू दैट, so contact time we have talked about, and we have talked about air conditioner, we have talked about this. Then we come back basically to 4 words. चार डेफिनेशंस हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। पहली में डेफिनेशन है आपके पास में आइसोलेशन, क्वारंटाइन एंड मॉनिटरिंग। आइसोलेशन का मतलब है कि आपने उसको एक कमरे में रखना है, क्वारंटाइन का मतलब है सेम फ्लोर पे, और मॉनिटरिंग का मतलब है बाहर निकल के आप मास्क पहन के जाएंगे। अब ये तो बोलोगे कि तुम सुन के थक गए, ये तो रोज टीवी में आता है, सब जगह पे यही न्यूज आती है, इसमें नया क्या है? नया इसमें ये है कि अगर मेरे को घर में कोरोना पॉजिटिव है तो आप मेरे को आइसोलेट क्यों कर रहे हो, जेल में क्यों डाल रहे हो? बताइए, अगर आप मेरे को आइसोलेट कर दोगे और 9 दिन तक वहां छोड़ दोगे, मैं तो पागल हो जाऊंगा ना। कोई मुझे मिलने नहीं आएगा, कितना सोऊंगा मैं, कितना टीवी देखूंगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो नई चीज ये है कि मैं फोन करूंगा लोगों को, किस किसी का घर में पॉजिटिव है, चाचा बोलेगा मेरे यहाँ भी एक पॉजिटिव है, मामा बोलेगा मेरे यहाँ भी पॉजिटिव है, तो मैं क्या बोलूंगा, हम तीनों को एक फ्लोर दे दो, बाकी सारे दूसरे घर में जाओ, हमारे फ्लोर में और नहीं मिलेगा तो मैं सोशल मीडिया में डालूंगा कि मेरे घर के अंदर में मैंने माँ बाप को आइसोलेट कर दिया है, मेरा फ्लोर खाली है, पेइंग गेस्ट में जो जो कोविड पॉजिटिव है आ जाए। सारे कोविड पॉजिटिव इकट्ठे रह सकते हैं। जब हो गया तो हो गया, तो व्हाई शुड आई लिव इन आइसोलेशन? कन्वर्ट योर एडवर्सिटी इनटू एन अपॉर्चुनिटी। आप फोन करके बोलो पेइंग गेस्ट जो जो कोविड पॉजिटिव है मेरे पास आ जाए, खाना भी खिलाऊंगा, कंपनी भी दूंगा, पैसे भी कमाऊंगा। तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? मरना तो है नहीं। अगर मेरे को 9 दिन अगर मेरे को आइसोलेट कर रहे हो तो मैं आइसोलेट क्यों हूं? कन्वर्टेड इनटू एन अपॉर्चुनिटी। 10 लोग इकट्ठे रह सकते हैं, 15 लोग इकट्ठे रह सकते हैं, मस्ती मारो। Why should I be isolated? अभी मेरे पास में फोन आया, हस्बैंड वाइफ दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों अलग अलग कमरे में आइसोलेटेड है। मैंने कहा दोनों को आइसोलेट होने की जरूरत क्या, दोनों पॉजिटिव हो, आ जाओ इकट्ठे। और अगर मान लीजिए किसी डेंटिस्ट को पॉजिटिव हो गया, वो बाहर लिख दे वहां पे ओनली पॉजिटिव पेशेंट्स अलाउड फॉर द ओपीडी। ओपीडी क्यों बंद कर रहे हो? मान लीजिए आपको पॉजिटिव आ गया, ठीक है, सीरियस आप हो नहीं, आपको डायरिया वाला पॉजिटिव आया, तो आपके पास में तो अपॉर्चुनिटी है ना, लिख दो
जो जो कोविड पेशेंट्स के पॉजिटिव पेशेंट्स है वो मेरे पास आ जाए, मैं उनकी डेंटल ओपीडी चला रहा हूँ। व्हाई कांट यू कन्वर्ट एन एडवर्सिटी इनटू एन अपॉर्चुनिटी? डर के क्यों बैठे हो उस छोटे से वायरस के साथ में? नाउ वी कम बैक टू, हर आदमी बात कर रहा है वैक्सीन की। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट वायरस कि वैक्सीन आएगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस वायरस। दिस वायरस इन माय बॉडी, सपोज मैं वायरस हूं तो मैं आरएनए हुआ, मेरी बनियान इसका एनवेलप हुआ, मेरी कमीज इसकी मेम्ब्रेन हुई और मेरे बटन्स इसके स्पाइक हुए। अब वैक्सीन के लिए मुझे वायरस या वायरस का कंपोनेंट चाहिए। या तो आप मेरे को यूज कर लोगे, या मेरे को मार के डेड वायरस इस्तेमाल कर लोगे, या मेरे को इनइफेक्टिव बना के उसको पैरालाइज करके उसका एटेन्यूएटेड वायरस का इस्तेमाल कर लोगे, या मेरे शरीर के आरएनए का इस्तेमाल कर लोगे, या मेरी बनियान से वैक्सीन बना लोगे, या मेरी शर्ट से वैक्सीन बना लोगे, या मेरे बटन से वैक्सीन बना लोगे, या मेरे बटन को किसी दूसरे की कमीज में डाल दोगे, दूसरे वायरस के अंदर में मेरा बटन एक्सचेंज कर दोगे, वैक्सीन बन गया। यही तरीके है ना? या फिर मेरे बटन के साथ में कोई चीज डाल दोगे एज ए एडजुवेंट। ये सारे तरीके हैं। अलग अलग कंपनियां काम कर रही हैं। एक कंपनी काम कर रही है वो एडिनो वायरस के बटन को मेरे बटन से एक्सचेंज कर रहा है, जो ऑक्सफोर्ड वाला वैक्सीन बना रहा है। दूसरे वालों ने मेरे शरीर का एक रेप्लिका बना दिया, मैसेंजर आरएनए वायरस लाइक पार्टिकल से, वो वैक्सीन बना रहे हैं। लेकिन लफड़ा क्या है, हमें ये तो पता ही नहीं कि ये वैक्सीन जो बनेगा इसमें से जो अलग अलग टाइप के मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं वो किससे हो रहे हैं। आपने बोला कि मैं स्पाइक से मैं आपका बटन चेंज कर दूंगा, लेकिन बटन से सातों कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं क्या? इसलिए क्या मेरा ये वैक्सीन सातों कॉम्प्लिकेशंस रिमूव करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं। So even if the vaccine is effective, maybe it is effective। जैसे अभी एक एनिमल स्टडी हुई, उसमें बताया कि वायरल लोड कम नहीं किया, निमोनिया कम हुआ। इसका मतलब क्या है? जीआई मैनिफेस्टेशन बढ़ेंगे कि उसने जो है कि पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस कम कर दी, लेकिन जीआई की बढ़ा दी। पता नहीं आज की डेट में। सो वैक्सीन वी डोंट नो। सो दिस वायरस इज ए बहरूपिया, इसलिए उसने हमें डरा दिया और हम डर गए। ये अलग अलग रूप बना के आ रहा है, लेकिन अब हम समझ गए हैं कि ये बहरूपिया है, हमें हर रूप में इसको पहचानना है। एंड वी आर स्मार्टर देन द वायरस। हमें हर रूप में, अगर हम इसको आज से अगर हम इफ यू स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली, अभी तक अगर आप डर से बैठोगे यू आर लॉस्ट। डर निकाल के अगर हम समझ ले कि ये बहरूपिया है और मुझे इसको पकड़ना है, आप पकड़ लोगे। मृत्यु सिर्फ उसकी हो रही है जिसका हाइपोक्सिया हम मिस कर रहे हैं। अगर समय पे उसका हाइपोक्सिया पकड़ लें और लोगों को ये देखते रहे कि 6-6 घंटे में पेशाब होता रहे ताकि किडनी फेल ना हो, we will be able to prevent him। अब दवाइयां हम इसमें डॉक्सीसाइक्लिन भी दे रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन भी दे रहे हैं, थिंकिंग की बैक्टीरिया लाइक प्रॉपर्टी है। इन्फ्लेमेशन के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी दे रहे हैं। अगर एंटीवायरल इफेक्ट आया तो हमने इसको रेमडेसिविर भी दे दी। अगर मेरी इसको इम्यूनिटी बढ़ानी है तो प्लाज्मा थेरेपी भी कर दी। अगर बहुत ज्यादा साइटोकाइन स्ट्रॉम है तो IL-6 इनहिबिटर्स दे दिया। अगर पेशेंट का ल्यूकोपेनिया हो रहा है तो HIV की ड्रग्स दे दी। ये तो वेरी करेगा पेशेंट के मैनिफेस्टेशन से, लेकिन majority of the people, more than 99.98% people will become all right by themselves। और जब मोर्टेलिटी इतनी कम है, कभी कोई बताएगा भारत में 1000 में से हर साल कितने लोग मरते हैं? श्वेता, भारत में हर साल कितने लोग मरते हैं? एनीबडी? लश्वेता पटनायक, प्रज्ञा कुमार, बताइए, अनम्यूट करके बताइए। 6000 लोग भारत में हर साल, 1000 में से 6 लोग हर साल मरते हैं। 1000 में से 6 लोग, 6 पर 1000 पीपल डाई। यहां तो मिलियन की बात कर रहे हैं, 6 पर मिलियन बिकॉज ऑफ दिस।
सिर्फ कोरोना ने कितने लोगों को मारा है? 6 पर मिलियन। नॉर्मल डेथ कितनी होती है? 6 पर 1000। 1000 से 10,000, फिर 1 लाख, फिर 10 लाख। तो फिर हम क्या करने को बैठे? लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, लिख के रख लो कि इस साल कम डायबिटिक की मौतें होंगी, कम ब्लड प्रेशर के लोग मरेंगे, कम अस्थमा के लोग मरेंगे, कम पैरालिसिस के लोग मरेंगे, कम लोगों को कैंसर होगा, कम लोगों को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होगा, कम एक्सीडेंट होंगे। ओवरऑल अगर 10,000 लोग मरे तो कम से कम 10 लाख लोग मरने से बचेंगे। सो प्यारे my juniors and my colleagues, take the fear out, open up, start the clinic, take the fear out. Imagine that every patient is positive. Otherwise, you will get it. If you are going to consultation less than 10 minutes, surgical time less than 30 minutes, take precautions and boldly do the practice. मेरा समय मेरे को बोला गया था कि 1 घंटे का प्रोग्राम है, 42 मिनट मैंने बोल दिया. Like to take question answer for 15 minutes. Thank you very much, sir. You have really brought clarity to our many apprehensions, sir. So there are a few questions. Sir, जैसे आपने बताया कि हर एक पेशेंट के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग तरीके से ये वायरस जो है ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, अलग अलग तरीके से इट इज शोइंग इट्स सिम्टम्स. सो सर, क्या ये चीजें सारी डिपेंडेंट हैं वायरल लोड के ऊपर? No, we don't know. It may be, the answer may be in Ayurveda as per body types. And this was an opportunity for Ayurvedic people to come forward. Unfortunately, they are not understanding that this is the time to diagnose which person will get what disease. I am 100% sure it is a predictable model. Which person will get which disease should be predictable. But we are, at the moment, we are not being able to find. So therefore, we are asking questions. सबको सारे questions पूछ रहे हैं. अगर हम इस पे मेहनत करें, then we should be able to predict. I should be able to look at you and ask you only those questions जो positive निकलेंगे. That's possible. But it is manifesting differently. So therefore ये बहरूपिया है. इसको हर वेश के अंदर में पहचानना मुश्किल है. I'm again telling you, जो मैंने आज बोला है, 98% of the things you will not get in the books. Because this is my constantly 8 hours a day I'm talking to my patients. And तब जाके information निकल के आई है, and I'm sharing it with everybody. And this video, if you go to youtube.com/drkkagarwal, it is live. You are 673 people here. Kindly take that link and pass it on to at least 10 people each. Sure. At least every dentist in the country should know. Because सारा focus MBBS के ऊपर में होता है, डॉक्टरों के ऊपर में होता है, डेंटिस्ट पे नहीं होता. So वो लोग डरे हुए हैं. सारे डेंटिस्ट जो हैं वो सारे के सारे डरे बैठे हैं. This is only a small talk I have given. Actually this is a preliminary talk. अभी आपके मन में सवाल उभरेंगे बहुत सारे. वो सवालों के जवाब we can have another one. But वो तभी होगा जब आपके 672 से 6,000 से 6 लाख के डेंटिस्ट को पता लगेगा. Then they will start asking questions and then dental seminars will start with a different perspective. इसको करिए, अभी करिए, जाने से पहले इसका लिंक ले लीजिए. अगर ऋतु है, ऋतु जी अगर आप लिंक डाल के इनके चैट में डाल दो. ऋतु जी. यस सर, मैं डाल देती हूँ. वो लिंक उठा लीजिए, सबको फॉरवर्ड कर दीजिए. ठीक है, ओके सर. आपके कॉलेज का भी नाम होगा, ए न्यू मैसेज विल गो. यस शिवानी जी. श्योर सर, थैंक यू. एंड सर, ये जो आपने बताया कि अलग अलग तरीके से क्या कहते हैं ये मैनिफेस्ट कर रहा है, तो आजकल माइनर फ्लू या कोल्ड के सिम्टम्स आते ही इंसान जो है वो घबरा जाता है कि मेरे को कहीं कोरोना तो नहीं होता. देखो ऐसा है, एक अनरिटन रूल है कि 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रहती. तो इट इज वेरी अनयूजुअल कि कोरोना चल रहा है और बाकी वायरसेस को छोड़ दे, वो उनको आने दे. आदमियों को तो उसने डरा दिया, बाकी वायरसेस क्या चीज हैं. तो इफ यू आर थिंकिंग कि इस साल डेंगू भी आएगा, चिकनगुनिया भी आएगा, आई डोंट प्रेडिक्ट. बिकॉज अनरिटन रूल तो यही है कि जब एक एपिडेमिक चलता है तो बाकी बीमारियां नहीं आती. तो इस वक्त में जो भी फ्लू हो रहा है वो सारा कोरोना है. सर, अगर हमें लगता है कि हमें कोरोना हो गया है सिम्टम्स के हिसाब से, सो व्हाट शुड वी डू अबाउट इट? अगर हो गया है तो सबसे पहले जब लोग मेरे को बोलते हैं 3-4 चीजें.
कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि मेरे घर में मेरे को लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल हो गया है, तो आई टेल देम कांग्रेचुलेशंस। बोले क्यों? मैंने कहा क्योंकि सबसे माइल्ड सिम्टम है, इससे अब आपको कुछ नहीं होगा। आई हैव नेवर सीन ए पर्सन विद लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल बिकमिंग सीरियस। फिर मैं दूसरा पहुंचता हूं कि घर में डायरिया किसको हुआ था, वो बोलेंगे इसको हुआ था। बोलता हूँ सबसे पहला केस था, बोले वही था। जिसको डायरिया है घर में सबको होगा। टेक इट फॉर ग्रांटेड, इफ यू फाइंड ए पर्सन इन द फैमिली जिसको डायरिया हुआ है तो पूरी फैमिली को होगा, खुरेदोगे तो सबको मिलेगा। नंबर 3, गलती हमारे से क्या हुई केसेस के अंदर में भारत सरकार से, कि उन्होंने घर के अंदर में बोलना भूल गए कि जब ऑफिस से घर में आओगे मास्क पहनो। अगर आप घर में आके मास्क नहीं पहनोगे और बाहर पब्लिक डीलिंग कर रहे हो और पब्लिक को तो सिर्फ खांसी जुकाम देख रही है, डायरिया वाले घूम रहे हैं और बीमारी दे रहे हैं, तो आप टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आपके घर में सबको होगा। सो अगर आपको हो गया, नंबर 1, मान लीजिए आपने बोला मेरे क्लिनिक पे हो गया, यू हैव ए रिटन डाउन पॉलिसी। आपके घर में हो गया, यू हैव ए पॉलिसी। मेरे कॉम्प्लेक्स में हो गया, यू हैव ए पॉलिसी कि मुझे ये करना है। पैनिक नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आप प्रैक्टिस में हो और आपका क्लिनिक चल रहा है और वहां पैनिक हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, वो क्लिनिक बंद हो गया, 6 महीने तक नहीं खुलेगा, लोग वहां आते हुए डरेंगे। सो पहले से ही पॉलिसी है, सो व्हाट। सो माय पॉलिसी इज 3 चीजें, मैं हूं ना। लोग मेरे को बोलते हैं डॉक्टर साहब डर लग रहा है, ऐसे क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। सो ईच वन ऑफ यू शुड टेल, द प्रिंसिपल शुड टेल द टीचर्स, मैं हूं ना। टीचर्स शुड टेल द स्टूडेंट्स, मैं हूं ना। स्टूडेंट्स शुड टेल द पेशेंट्स, मैं हूं ना। कॉन्फिडेंस लाओ। हर आदमी को इस वक्त में एक हाथ चाहिए, हर आदमी को इसके बाद में एक हाथ चाहिए उसके साथ में जो है। दूसरा है सो व्हाट, हो गया सो व्हाट। मेरे क्लिनिक में कंप्लेंट पॉजिटिव आया था, सो व्हाट। अगर आपके यहाँ रिएक्शन है, सो व्हाट, बाकी सब लोग शांत हो जाएंगे। और तीसरा है बल्ले बल्ले, जहां 10 दिन पूरे हो गए बोलो बल्ले बल्ले मैं ठीक हो गया। 10वें दिन सब ठीक हो गए, 3 दिन का नो फीवर, टोटल 10 days यू आर नॉन इन्फेक्शियस, टेक इट फॉर ग्रांटेड। 10th day यू आर नॉन इन्फेक्शियस। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे 653 लोग हैं, मैं आपको एक फोन नंबर लिखवा रहा हूँ, मैं आपको एक नाम लिखवा रहा हूँ, ये नाम सबको लोग लिख लीजिए। कभी भी क्राइसिस हो वो नाम हमेशा आपको मिलेगा। सब लोग पेन निकाल लो, कागज निकाल लो फटाफट, ये नाम हर एक के पास होना चाहिए। हो गया सब लोग? वेरी गुड। बोलो डी, पहला नाम लिखो डी, फिर लिखो आर, फिर आगे लिखो के, फिर लिखो के, फिर लिखो ए, फिर लिखो जी, फिर लिखो जी, फिर लिखो ए, फिर लिखो आर, फिर डब्ल्यू, फिर ए, फिर एल। देखो सब डर गए ना, फटाफट नाम लिखना चालू कर दिया, जैसे पता नहीं कोई मैजिक ट्रिक आ रही है बताने के लिए। अरे मेरा नाम बोल रहा हूं, लेकिन ये डर सबके मन में है। जैसे मैं लोगों को बोलता हूं ना कि मैं आपको मैजिक बता रहा हूं, कागज पहन लो, सब लोग फटाक से निकालते हैं। ये डर है, डर को निकाल दो, डर को निकाल दो। आपके लिए मैं हूं, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए मैं हूं, टीचर्स के लिए प्रिंसिपल है, ठीक है। टीचर्स के लिए प्रिंसिपल है, स्टूडेंट्स के लिए टीचर हैं और पेशेंट्स के लिए स्टूडेंट्स हैं। जिस दिन आपने ये बोल दिया कि कुछ नहीं होने वाला, मैं हूं ना, यू हैव वन द गेम। जस्ट कंसंट्रेट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टू पिक अप सीरियस पेशेंट्स एंड सेव देम। बाकी जो हो रहा है होने दो। योर जॉब शुड ओनली बी टू पिक अप सीरियस पेशेंट्स एंड सेव देम। यस, ऋषि जी पूछ रहे हैं कि जब इतने सारी डाइवर्सिटी है, व्हाई वी हैव नॉट लेड डाउन डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स। अनफॉर्चुनेटली ये सारा इस वक्त में सरकार की गाइडलाइंस बनती हैं और सरकार में आप जानते हो कंसेंसस लेने के लिए उनको कितने समय, कितने महीने लगते हैं। उनको 6 महीने लग गए बताने के लिए कि डायरिया एक सिम्टम है, इसका डायरिया एक सिम्टम है उनको, मतलब दिसंबर से लेके जून आ गया, 6 महीने के बाद में भारत सरकार में कंसेंसस बनी है कि लॉस ऑफ टेस्ट को भी इंक्लूड करो। तो भारत सरकार से हम लोग हर चीज, भारत सरकार से आप लोग जब जिसकी शादी हुई है भारत सरकार से पूछोगे क्या कि मैं इस लड़के से शादी कर दूं या इस लड़की से शादी कर लूं? खुद भी तो अपना दिमाग लगाओ ना, अपने पेशेंट्स को खुद एक्सपीरियंस लो और पढ़ो, वो भी सीख रहे हैं, आप भी सीखो। यस शिवानी जी।
सर आजकल ये बहुत प्रचलित है कि विटामिन सी और आर्सेनिकम एल्बम का यूज। अगर आप लोग प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, मैंने प्रिवेंशन को टच नहीं किया, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये वायरस एक गीला वायरस है। ये बाहर निकल के उड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। ये गीला वायरस है। अगर ये जमीन पे गिरेगा तो मर जाएगा। ये वायरस के चारों तरफ एक लिपिड लेयर है। जो भी चीज लिपिड लेयर को डिसॉल्व करती है वो वायरस को मार देगी। इसलिए हमारे हाथ में खाना खाने के बाद में चिकनाहट को दूर करने के लिए जो जो चीजों का इस्तेमाल करते हैं उससे ये मर जाएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट इमेजिनिंग कि हम अपने हाथ की चिकनाहट को, या कपड़े में चिकनाहट लग गया है तो उसको कैसे निकालते हैं, उससे ये मर जाएगा। ये वायरस जब मेरे शरीर में घुसेगा तो या नाक से घुसेगा या मुंह से घुसेगा, तो ये लॉस ऑफ टेस्ट या लॉस ऑफ स्मेल कर सकता है। फिर ये गले में आके बैठ जाएगा तो गले में थ्रोट इरिटेशन करेगा, गले के अंदर में ये मेरे यहाँ पे इरिटेशन करेगा। उसके बाद में ये मेरे लैरिंक्स को स्पेयर करेगा। फिर ये अंदर जाएगा मेरे शरीर के अंदर में, या फेफड़ों में जाएगा, या फिर वो मेरे जीआई ट्रैक्ट में जाएगा। जीआई ट्रैक्ट में जाएगा तो फिर ये मेरे यहाँ पे नौशिया वॉमिटिंग करेगा। और अगर मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो स्मॉल इंटेस्टाइनल डायरिया करेगा। बड़ी आंत में नहीं जाता, रेक्टम में नहीं जाता। और अगर ये मेरे फेफड़ों में चला गया तो मेरे फेफड़ों में ट्रेकिया के अंदर में ड्राई कॉफ करेगा। और एल्वियोलाई में चला गया तो वहां क्लॉट्स बनाएगा, वहां से मेरे को साइलेंट हाइपोक्सिया बन जाएगा। अब देखिए, ये वायरस गीला वायरस है। गीले को सूखा कर दो तो वायरस मर जाएगा। तो कौन कौन से खाने पीने की चीजें सूखा करती है मेरे शरीर को? बिटर, एस्ट्रिंजेंट एंड पंजेंट। जो भी कड़वी है, जो कसैली है और जो तीखी है, वो मेरे शरीर के अंदर में सूखापन लाती हैं। आप कहते हो ना मेरे शरीर में बहुत ड्राइनेस हो रही है, तो आप बोलते हो ये कड़वा कसेला बंद कर दो, क्योंकि ड्राइनेस कर रहा है। तो अब ये जितनी भी चीजें हैं, हल्दी है, कसैली है, नींबू है, नींबू नहीं, हल्दी है, कसैली है, गिलोय है, कसीला है, अश्वगंधा है, कसेला है, नीम है, कड़वा है, काली मिर्च है, तीखी है। ये सारी चीजें आप इस्तेमाल करो तो आपके शरीर में ड्राइनेस होगी। अगर वायरस यहाँ फंसा हुआ है तो मर जाएगा। और यही चीजें अगर मेरे को बलगम निकलती है तो देते हैं कि ड्राइनेस लाने के लिए। फिर जब वो मेरा यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, कोई भी चीज अगर शरीर में मल्टीप्लाई कर रही हो तो मीठा और खट्टे से मर जाती है। तो शहद, च्यवनप्राश और साथ में आंवला, विटामिन सी आ गया ना। और उसके अलावा जिंक और विटामिन डी है। इसलिए दिन में 3 बार धूप में बैठो तो विटामिन डी मिल गया, नहीं तो विटामिन डी खा लो। जिंक हमारे शरीर के अंदर में एक एसेंशियल कंपोनेंट है। तो हम बोलते हैं 7 कलर 6 टेस्ट। अगर खाने में 7 कलर है, जैसे अगर आपने देखिए, सब लोग देखिए यहाँ पे, श्वेता को कब खाया आप लोगों ने? श्वेता को आप लोगों ने कब खाया? देखो श्वेता को सब लोग। श्वेता के 1 2 3 4 5 कलर है इसके कपड़ों में। तो ये 5 कलर के फ्रूट्स वेजिटेबल्स कब खाया आपने? नहीं खाए होंगे। आपने बोलोगे ब्लू, बोले वो सदियां हो गई ब्लू खाए हुए। वॉयलेट खाए हुए सदियां हो गई। इंडिगो का रंग खाए हुए सदियां हो गई। 7 कलर खाओ तो कोई विटामिन की जरूरत नहीं है। और यही सर तो टाइम है, यही तो समय दिया है कि कोविड जी ने आपको, कि यहाँ बैठ के आप जो है सब चीजों के बारे में सोचो। यस शिवानी जी। सर ये आर्सेनिकम एल्बम का बहुत आर्सेनिक एल्बम जो है ये होम्योपैथी की प्रिवेंटिव दवाई है, आप ले सकते हैं। जिनको होम्योपैथी में विश्वास है वो ले सकते हैं। जी सर। सर बच्चों को, ओल्ड पेशेंट्स को, डायबिटिक्स को, अदर कोमॉर्बिडिटीज वाले पेशेंट्स को क्या ख्याल रखना चाहिए? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक दवाई है जो भारत सरकार ने डायबिटीज कंट्रोल के लिए पास करी हुई है, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट है डायबिटीज। तो डायबिटिक, हार्ट पेशेंट्स एंड ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स आप लोगों से कंसल्टेशन करके हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की गोली 2 पर वीक ले सकते हैं। जी सर। सर जैसे आप सब लोगों को लेनी चाहिए। मैं ले रहा हूँ। सर उससे पहले ईसीजी का बोला गया है कि ईसीजी करानी जरूर। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के साथ में अगर आप एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हो तब ईसीजी की जरूरत है, नहीं तो नहीं। जी सर। सर जैसे इस वक्त हॉस्पिटल में, दिल्ली के, गाजियाबाद के हॉस्पिटल में बेड्स की स्कैर्सिटी बताई गई है। क्योंकि तो आपके बेड की स्कैर्सिटी इसलिए है कि जिनको जरूरत नहीं है आपने बेड भर रखे हैं। Why are you admitting a patient? उनको घर में रखो। Admit only patients who are serious or who are needing high flow oxygen. अगर आपको हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत है तो रखो, अदरवाइज क्या हो रहा है, आप सबको भर रहे हो
सबको भर के आप उनको देखने जा रहे हो, फिर आप आइसोलेशन में जा रहे हो 14 दिन के लिए, डॉक्टरों की शॉर्टेज हो गई। Why are you admitting patients? जी सर। सर आपने अपनी एक रीसेंट इंटरव्यू में बताया कि हमें पेट के बल सोना चाहिए आजकल। अगर आप लोगों को, अब जिन लोगों को रेस्पिरेटरी कोविड होगा तो उसका जो कोविड होगा या तो पोस्टीरियर सेगमेंट में होगा लंग के, या लेटरल सेगमेंट में होगा। अगर आप पेट के बल सोते हो तो पोस्टीरियर लंग खुल जाता है, तो इसलिए जब कोविड हो जाता है सबको हम पेट के बल सुला रहे हैं। पहले से ही प्रैक्टिस कर लो, उस टाइम पे बड़ा अनकंफर्टेबल होगा, तो हम कहते हैं पहले से ही प्रैक्टिस कर लो, पूरे लंग्स खोल के रखो। तो पेट के बल इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोनिंग। सेल्फ प्रोनिंग बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोविड हेल्प्स। नॉट ओनली इट हेल्प्स कोविड, इट हेल्प्स ऑल रेस्पिरेटरी इलनेसेस। जी सर। सर आपने बताया कि एयर प्यूरिफायर्स हमें अपने क्लिनिक्स में लगाने चाहिए। सर बाकी भी आजकल एडवर्टाइजिंग मीडिया भरा हुआ है इन चीजों से, जैसे अल्ट्रा वायलेट लाइट खरीदिए, बहुत सारी मल्टीपल ऐसे चीजें हैं। सर आपका क्या बेस्ट इज सबसे सस्ता और टिकाऊ है वो है एक लीटर पानी में 7 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल के आप उसको कपड़े में डाल के सफाई कर लें, उससे अच्छा कुछ नहीं है। करेक्ट सर। एक और सवाल सर, ये हर्ड इम्यूनिटी क्या है? हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड होता है R-1 डिवाइडेड बाय R। अगर आपका R वैल्यू जिसका 2.6 है इसका, तो हमारे को कम से कम 60% लोगों को बीमारी चाहिए बिफोर हर्ड इम्यूनिटी कम्स। बट हर्ड इम्यूनिटी विल नेवर कम, क्योंकि जितने आप लोगों को वैक्सीन लगाओगे उससे ज्यादा लोग पैदा हो जाएंगे उस साल, उनको तो वैक्सीन नहीं मिलेगा। तो हर्ड इम्यूनिटी भूल जाओ। अभी आपने मान लीजिए किसी तरीके से 60% लोगों को बीमारी कर दी, तो बचे 40, अगले साल नए और पैदा हो गए, वो फिर थ्रेशोल्ड से ऊपर निकल गए, उनको तो इन्फेक्शन होगा। जी सर, बिल्कुल। Sir, you have really created a magic, as you told. Sir, really, I can't thank you enough for the very informative and interesting session. And you answered each and every query so patiently and elaborately. Sir, I will now request our respected Vice Chairman, sir, to say a few words before we end up the session. Sir. Yeah, thank you so much, sir. I hope I'm audible. Yes, sir. Yes. Thank you so much, sir. I was personally expecting this session to be like it went. बहुत ही simple words में sir आपने सबको बताया कैसे डर के नहीं रहना है, careful रहना है, and there is a way out for this. Few things you pointed out, consultancy 10 मिनट करो, surgery 30 minutes में करो. So there are a lot of things which you have even pointed out, which will surely be a positive message for all the 700 participants who were there today in this talk. And as you said, sir, we'll surely spread it across to all the dentists of the country. आपने एक बहुत ही अच्छा statistics बताया sir कि death rate normally country का 6 in 1,000 है, which is far higher than corona casualties. This is something which no one is looking at. I personally also have been talking at various platforms and saying we should look at the positive sides. I even pointed out that number of cases active should be looked upon rather than seeing the total number of infected cases. जो आज active cases हैं, which is far less than the total number of cases जो हुए थे country में. You even pointed out that we should eat 7 colors of food, which is absolutely amazing. And in the end, the best part was पेट के पल पहले से ही सोना सीख लो और मैं हूं ना adopt करो. And I'm sure everyone needs a hand, and a hand like you in this session would have motivated each one of us, and it would definitely help us stay positive. Thank you so much, sir. सब लोगों को मेरा प्रणाम. Thank you, sir. Thank you. Thank you all for the very patient listening. Thank you.